کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب حکومت نے واسا کی سبسڈی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پنجاب کے 5 بڑے شہروں میں واسا کی دی جانے والی سبسڈی ختم کر دی جائے گی۔ پنجاب حکومت کے محکمہ ہاؤسنگ نے واسا کو دی جانے والی سبسڈی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پنجاب کے 5 بڑے شہروں لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالا، ملتان اور فیصل آباد واسا کی سبسڈی ختم کر دی جائے گی۔ محکمہ ہاؤسنگ ذرائع کے مطابق واسا سے 2 ارب کی سبسڈی واپس لے لی جائے گی۔ سبسڈی ختم ہونے پر 5 شہروں کے واسا اپنے اپنے ذرائع سے ریونیو پیدا کریں گے۔ واسا غیر قانونی کنیکشن ختم، بلنگ کے نظام اور اپنی کارکردگی کو بہتر کریں گے، جبکہ اس حوالے سے یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ واسا اپنا ٹیرف نہیں بڑھا سکیں گے، بلکہ سبسڈی کا بوجھ صارفین کے بجائے اپنے وسائل سے پورا کریں گے۔ اور ادھر پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی رپورٹ 3 ہفتوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کرے گی۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کو کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ، سیکرٹری قانون، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری انڈسٹری اور سیکرٹری پنجاب پی ٹی اے شامل ہیں۔ اس سے قبل کابینہ نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے 25 سے 30% کرائے بڑھانے کی سمری مسترد کی تھی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے نان اے سی بسوں کے کرایوں میں 25 سے 30% اضافے کی تجویز دی تھی۔ گوہر اعجاز گروپ کی اور پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن میں 11ویں سال بھی حکمرانی برقرار ہے۔ ایپٹما کے سالانہ انتخابات برائے سال 2020-21 میں گوہر اعجاز گروپ کے تمام امیدواروں نے بلا مقابلہ یہ الیکشن جیتا۔ ایپٹما انتخابات 2020-21 میں بھی ایک مرتبہ پھر گوہر اعجاز گروپ کے امیدواروں نے بلا مقابلہ میدان مار لیا۔ عادل بشیر سال 2020-21 کے لیے ایپٹما کے مرکزی چیئرمین منتخب، جبکہ عبدالرحیم ناصر ایپٹما پنجاب کے چیئرمین ہوں گے۔ 9 منتخب عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایپٹما کے گروپ لیڈر گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ جلد نئے عہدیداروں کے ہمراہ وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 100 بند یونٹس میں 30 یونٹس پر گورنر اسٹیٹ بینک سے بات ہوئی ہے۔ 30 یونٹس 90 روز میں فنکشنل ہو جائیں گے، جس سے $1 ارب تک ایکسپورٹس میں اضافہ متوقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کام کرنے دیا جائے تو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس $15 ارب سے $150 ارب تک لے جائیں گے۔ اگر ٹیکسٹائل میں ایک صفر ایڈ ہو گیا $15 بلین میں تو کیا ہو جائے گا؟ $150 بلین، اور یہ پاکستان کا پوٹینشل ہے۔ اور مزے کی بات بولوں گا میں، آپ کو لگے گا جیسے میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ میں بول رہا ہوں کہ $15 بلین ہے، $150 بلین ہو جائے گا۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، پاکستان کا نمبر 1 ایکسپورٹنگ کمپنی پتہ ہے کیا اس کی ٹرن اوور کتنی ہے؟ نمبر 1 یہ جو $15 بلین، $330 ملین۔ ایپٹما کے 9 منتخب مرکزی چیئرمین عادل بشیر نے کہا کہ حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے کرونا کے دوران صنعتوں کو سہارا دیا، تاہم ٹیکسٹائل پالیسی وقت کی اہم ضرورت ہے، اسے فوری طور پر لاگو کرنا ہوگا۔ ٹیکسٹائل پالیسی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ گوئنگ فارورڈ ہمارا یہ مشن ہوگا کہ ہم جو ٹیکسٹائل پالیسی بنی پڑی ہے اس کو امپلیمنٹ کرائیں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، جس میں ہماری انرجی کی جو مسائل ہیں وہ بھی کور ہوتے ہیں، را مٹیریل کے جو ایشوز ہیں، اینڈ یہ بہت ایکسٹینسو پالیسی بنی ہے جس کو تقریباً 6 مہینے لگے ہیں بنانے میں۔ ایپٹما پنجاب زون کے 9 منتخب چیئرمین عبدالرحیم ناصر کا کہنا تھا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے فروغ کے لیے کام کریں گے۔ ایپٹما کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ یہ سال ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بہت اچھا ہوگا، تاہم حکومت اپنی پالیسیاں ایکسپورٹس کی بڑھوتی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹس لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروانے کے لیے وکلا نے شریف فیملی سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ وکلا کی رائے اور ڈاکٹرز کی مشاورت کے بعد خاندان نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس ہائی کورٹ میں جمع کروائے گا۔ سزا یافتہ مجرم لندن کی سڑکوں پر گھوم رہا ہے۔ لندن میں علاج تو دور کی بات، ایک انجیکشن تک نہیں لگا۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس۔ دونوں کے لیے اچھا ہے، نیب کے لیے بھی اچھا ہے اور جس کے اوپر الزام لگا ہوا ہے، کیونکہ جب تک آپ ثابت نہیں ہو جاتا الزام ہے، آپ کے لیے بھی اچھا ہے۔ آپ خود اپنے آپ کو پیش کریں۔ شہباز شریف صاحب آج کل فارغ ہی ہیں، اسمبلی تو آتے جاتے نہیں ہیں۔ میں جب سے اسمبلی جانا شروع ہوں میری تو خواہش ہے کہ دیدار ہو، وہ دیدار ہی نہیں ہو رہا ان کا۔ انسانیت کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے، اگر ایک بوڑھا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میں مر جانے لگا ہوں اور میں مر جاؤں گا، اور رپورٹس بھی یہی کہہ رہی ہیں، تو ہمارے ہاں تو انسانیت کی قدر کی جاتی ہے، انسانیت کے ناطے انہیں جاتی ہے۔ نواز شریف کو واپس لانا آسان نہیں ہے۔ جہانگیر ترین واپس آ جائیں گے۔ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا۔ فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی نون اور پیپلز پارٹی سے ان کا مسئلہ ہو وہ تحریری ہو، اور شہباز شریف تو کسی قیمت پر تحریر نہیں دے گا۔
क्योंकि वो तहरीर के है ही खिलाफ है। वो तकरीर करेगा, तहरीर नहीं देगा। और पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी आपस में बज़ाहिर इख्तलाफात हैं। खुद तो बराह रास्त फ़ोन करके नहीं मांगते, न किसी के ज़रिए मांगते हैं, और दोनों पार्टियां एनआरओ की तलाश में हैं। इमरान खान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसको एनआरओ नहीं देगा। जो आगे ही पछता रहा है, जो नवाज शरीफ। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत ऐवान वज़ीर-ए-आला में एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ। मुहर्रमुल हराम के दौरान किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। सरदार उस्मान बुज़दार ने मजालिस और जुलूसों के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा, मुहर्रमुल हराम के दौरान मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाएगा। मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूसों की निगरानी के लिए DC ऑफिस में कंट्रोल रूम फ़ाल कर दिया गया है। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की निगरानी के लिए तश्कील दिए गए मरकजी कंट्रोल रूम का कायम मुकाम कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफसाल ने दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। अशूरा का मरकजी रवायती जुलूस 9वीं मुहर्रम की रात 11 बजे निसार हवेली से बरामद होगा। निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस 10वीं मुहर्रम की शाम बादज मगरिब इख्तिताम पजीर होगा। दूसरा मरकजी जुलूस 10वीं मुहर्रम को दिन 12 बजे 145A मॉल टाउन से बरामद होगा। मॉल टाउन से बरामद होने वाला जुलूस नवाज शरीफ पार्क मॉल टाउन पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। तीसरा मरकजी जुलूस 9वीं मुहर्रम पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होगा। ये जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ खेमा सदात से वापस पांडो स्ट्रीट पहुंचकर रात 12 बजे इख्तिताम पजीर होगा। चौथा मरकजी जुलूस 9वीं मुहर्रम को 276 शादमान से बरामद होगा, जो शाम 4 बजे इख्तिताम पजीर होगा। पांचवा मरकजी जुलूस 9वीं मुहर्रम को इमाम बारगाह वाने अली अकबर ठोकर न्याजबेग से बरामद होगा। ये जुलूस दरबार करबला कब्रिस्तान न्याजबेग गाँव पहुंचकर शाम 6 बजे इख्तिताम पजीर होगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक जुलूसों के रूट्स पर कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। जुलूसों के रूट्स पर 399 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। कंट्रोल रूम में कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, MCL, जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, ईदी, वापडा, वासा, सुई गैस समेत दीगर लाइट महकमों का स्टाफ तैनात किया गया है। मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूसों के दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तार और वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए जाएंगे। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। मुतनाज़ तकारीर रोकने के लिए सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग की जाएगी। CCP लाहौर की जानिब से मजीद कहा गया है कि 9 और 10 मुहर्रम को मखसूस इलाकों में मोबाइल डेटा भी बंद कर दिया जाएगा। मजालिस होती हैं और इसके बाद ट्रेडिशनल जो जुलूस हैं, जो 7 तारीख को भी 8, 9 मुख्तलिफ डेट्स में मजालिस और जुलूस होते हैं, उसके रूट का सारा अभी इंस्पेक्शन की है और इसी तरह इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया है और सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स इन प्लेस होंगे उसका भी अभी जायज़ा लिया है। और दोनों चीज़ें इनको ऑर्गेनाइज़र्स को एम्फेसाइज़ की हैं कि इस दफ़ा सिक्योरिटी का भी ख़ास तौर पे ख्याल ज़ाहिर है वो तो हमेशा करना ही होता है, इस दफ़ा कोरोना का भी साथ साथ SOPs के मुताबिक मास्क यूज़ करना, डिस्टेंसिंग करना, उसका भी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना हॉस्पिटल गौहर एजाज का जिना हॉस्पिटल डायलिसिस सेंटर का दौरा। गौहर एजाज का कहना था कि 12.5 साल से स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज ने शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर में ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत की। दौरे के दौरान हेड ऑफ ENT प्रोफेसर अशरफ ज़िया, MS डॉक्टर याहिया सुल्तान और दीगर मौजूद थे। मुनक़िदा तकरीब में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स में बोनसेस तकसीम किए गए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गौहर एजाज का कहना था कि अस्पताल के दीगर शोबों को भी डायलिसिस सेंटर की तरह बनाने के लिए कोशा हैं। अब मैं आपके सामने जो है वो हर डिपार्टमेंट को कंप्लीट कराने ला रहा हूँ, तो अब आप लोगों ने मुझसे कंप्लीट करना है। डिपार्टमेंट्स साथ खड़े होकर आपसे कंप्लीट करना है कि उन्होंने आपको क्रॉस कैसे करना है। मरीजों का कहना था कि यहाँ दी जाने वाली सहूलियात किसी इंटरनेशनल अस्पताल से कम नहीं। गौहर एजाज के बेहद मशकूर हैं। दीगर मुखय्यर हजरात को भी आगे बढ़कर इस नेक काम में हिस्सा डालना चाहिए। अल्लाह पाक गौर साहब को और ज़्यादा इज्जत दे, या अल्लाह उनको दीन दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए। ये दिल निकालना बड़ी बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मेयार का ये डायलिसिस सेंटर है और अल्लाह ताला गौहर साहब को इससे ज़्यादा भी करे जो उनको कर रहे हैं आवाम के लिए। इतनी तो हमारी कोई अपने भी नहीं कर रहे जितनी इन लोगों ने हमारे साथ अच्छा सलूक किया। बहुत अच्छा हो रहा है हमारे साथ। हर चीज़ मिलती है टाइम पे,
मतलब कि साफ सुथरी। इस मौके पर मौजूद प्रिंसिपल प्रोफेसर तैयब अब्बास, प्रोफेसर राशिद ज़िया, प्रोफेसर शफीकुर रहमान चीमा, डॉक्टर याहिया समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा बस्ताम सुल्तान, सिटी 42। महकमा एक्साइज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में लाहौर की अजादारी खत्म करने में नाकाम हो गई। पहली सीरीज में 75% गाड़ियां लाहौर में रजिस्टर्ड हुई हैं। 4 रोज में पहली सीरीज खत्म हो चुकी है। जबकि गुजरात हुकूमत ने रेस्क्यू में तैनात डॉक्टर्स के लिए हेल्थ प्रोफेशनल्स अलाउंस देने से इनकार कर दिया है। रेस्क्यू में तैनात डॉक्टर्स के लिए बुरी खबर है कि पंजाब हुकूमत ने रेस्क्यू में तैनात डॉक्टर्स को खुसूसी हेल्थ अलाउंस देने से इनकार कर दिया। ज़राए ने बताया है कि काबीना कमेटी में महकमा खजाना ने रेस्क्यू में तैनात डॉक्टर्स को अलाउंस देने पर मुखालफत की। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से भेजी गई समरी के मुताबिक रेस्क्यू में ग्रेड 17, 18, 19 और ग्रेड 20 के डॉक्टर की तनख्वाह में 30,000 तक इजाफा होना था। महकमा खजाना ने काबीना कमेटी में रेस्क्यू एहलकारों को अलाउंस न देने की सिफारिशात की। काबीना कमेटी के बाकायदा मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी कर दिए हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग के मुताबिक डॉक्टर्स के लिए इजाफी अलाउंस देने का एजेंडा मनसूख कर दिया गया है। जबकि जिले इंतजामिया के अफसरान ने डेंगू सर्विलेंस के लिए मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के दौरे किए हैं। 4 मुकामात से डेंगू लावा भी बरामद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ीशान नसरुल्ला रांझा ने यूसी 106 अफगानी रोड समनाबाद जोन का दौरा किया और डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। 2 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद होने पर स्प्रे कराया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सनीम ने लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में 5 टीम नंबर 1 और 3 की कारकर्दगी को चेक करने के लिए दौरा किया। इस मौका पर 2 घरों से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। लार्वा को मौका पर तल्फ करार दिया गया, जबकि घरों के मालकान को वार्निंग जारी की गई। अफसरान ने मालकान को हिफाजती तदाबीर अपनाने की हिदायत की। एसी मॉडल टाउन ज़ीशान रांझा ने कहा कि शहरी घरों के अंदर बाहर और गिरदो नवाब में सफाई सुथराई का ख्याल रखें। साफ सुथरे माहौल से ही डेंगू का खात्मा मुमकिन है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अब्दाल की हिदायत पर डेंगू दौरे किए जा रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल में नर्सेज की एहतजाजी रैली। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल को ओहदे से हटाने का मुतालिबा किया जा रहा है। हॉस्पिटल में उनको फौरन ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उन्होंने नर्सिंग हॉस्टल पे मेल पुलिस गर्दी करवाई है जिसकी वजह से लड़कियों का ये सरापा एहतजाज है। फीमेल नर्सिंग हॉस्टल में मेल पुलिस लेके आई है और लड़कियों को घसीटा गया है और हम अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। अगर ये यहाँ पे रह जाती है, क्या आप इस चीज़ की गारंटी देते हो कि नेक्स्ट टाइम वो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती हमारे? तौबा ख़वातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाह परवेज़ मलिक का एमएन ने शिजा फातिमा खाजा के हमरा लीगी ख़वातीन कारकुनान को घरों में सब्जियाँ लगाने की तरबियत देने के हवाले से ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज़ मलिक की हल्के के कारकुनान से भी मीटिंग। कहते हैं कि हल्के के मसाइल हल करवाने के लिए कोशिश हैं। चेयरपर्सन शोबे खवातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज़ मलिक ने NA 133 की लीगी खवातीन कारकुनान को घरों में सब्जियां लगाने की तरबियत देने के हवाले से ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद टाउनशिप के दफ्तर में किया। उन्होंने MNA शिजा फातिमा ख्वाजा के हमरा लीगी खवातीन कारकुनान को घरों में सब्जियां लगाने के हवाले से मालूमात दी। मेरी कोशिश है कि ये सब ख़वातीन इनको हम ट्रेन कर लें कि ये अपने घरों की छतों पे अपने सहनों में जहाँ धूप आती है वहाँ पे ये अपनी सब्जियाँ उगाएं। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मोहम्मद परवेज़ मलिक ने MPA रमज़ान सदीक भट्टी के हमरा लीगी कारकुनान से मीटिंग करते हुए हल्के के मसाइल सुने। परवेज़ मलिक का कहना था कि मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में संजीदा नहीं, अपोजिशन के हलकों में तरक्याती काम भी नहीं हो रहे। आज यहाँ ये लोग जो 100 लोग आए हैं, इन्होंने मुझे कहा कि जी अब हम कोई मेन रोड यहाँ की बंद करें। तो मैंने कहा नहीं, एक दफ़ा हम गवर्नमेंट को तंबीह करते हैं कि जी आप ये मसले ख़ास तौर पे वासा के मसले हैं, इनको आप ठीक कीजिए। डिपार्टमेंट इसका ज़िम्मेदार नहीं है, ये हुकूमत ज़िम्मेदार है। नाहल जो चीफ मिनिस्टर से लेके सारे बैठे हुए हैं वज़रा तक, ये सारे इन्होंने नाहली का सबूत दिया जिससे लाहौर डूब गया, गलियों में पानी खड़ा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि अवाम की खिदमत के लिए उनसे राब्ते में हैं, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों की नाकामियों की वजह से अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ उमर असलम। खेल के मैदान से खबर ये है कि PCB के साबिक डायरेक्टर एकेडमी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नजर ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होने वाली तैनातियों पर सवालात उठा दिए हैं। जूनियर जो कि लास्ट ईयर का चैंपियन था, उसकी टीम चैंपियन बनी थी, उसको कैसे निकाल दिया? अब मैं ये पढ़ रहा हूँ कि कह रहे हैं कि हमने लोगों से, क्रिकेटर से, जो टीम के बंदे हैं उनसे बात करके अनाउंसमेंट की है। तो इसका मतलब है कि आज अगर पाकिस्तान टीम मैच हार जाती है, 1-2 लड़के मिसबा के अगेंस्ट बात करते हैं और गलत बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को निकाल देगा।
द लिटिल आर्ट के ज़रिए इस्तेमाल मलहमरा के ताउन से बार में लाहौर इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है। इफ्तिताही सेशन की ऑनलाइन तकरीब में कामरान लाशारी, शुएब अहमद, समन राय, डॉक्टर फौजिया सईद, तलहा अली और आरिफ बेग ने शिरकत की। फेस्टिवल में 24 मुल्कों की 16 ज़ुबानों में 158 फिल्में दिखाई जाएंगी। डायरेक्टर LICFF शुएब अहमद ने पैनल का तारुफ करवाते हुए कहा कि फेस्टिवल की तमाम फिल्म्स स्टार्स प्ले पर ऑनलाइन दिखाई जाएंगी। फेस्टिवल 21 नवंबर तक जारी रहेगा। ये हमारा सालाना इवेंट है। इसमें कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर बच्चों पर तैयार होने वाली फिल्म्स दिखाई जाती हैं। बच्चों की अपनी प्रोड्यूस करदा फिल्में भी फेस्टिवल में देखने वालों की तवज्जो हासिल करेंगी। ये फेस्टिवल लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गिलगित बल्तिस्तान, जामशोरो, टंडूधाम, बस्ती सिंध, बक्कर, पंजाब के रूरल इलाके में पेश किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि कोविड-19 की वजह से हमें कई एक चैलेंजेस का सामना है, जिससे निबर्द आसमां होने की हम पूरी सलाहियत रखते हैं। हम इस फेस्टिवल में स्टार्स प्ले लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए फिल्म्स पेश कर रहे हैं। इन ज़राए को इस्तेमाल करके मतलूबा नताइज हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।